Good morning, everyone. Myself Bhavani Singh from Department of Aerospace Engineering, Swami Vivekananda University, Sagar. So today I am going to deliver a lecture on column and its strut. So basically, first question is what is column and strut? So basically, any member subjected to an axial compressive load is column or strut. Then second question is what is the difference between column and strut? So basically, column is a vertical member subjected to an axial compressive load is called column, and strut a inclined member subjected to axial compressive load is called strut. And for example, this is compressive load P, that means this is column, and if any angle either 1 degree or 90 degree is strut. So we can say that like a horizontal beam is called a strut. Now second question is type of columns. So basically three type of columns is there. First is short column, second is medium, and third is long column. So short column is the whose length is short related to its cross section, that failure occur mainly due to direct compressive stress only. And in medium column, failure occur by combination of direct compressive stress and bending stress. And in long column, the failure occur by only bending stress. This is the type of columns. Now the next point is Euler theory. The basic point and the important point is for column and strut is Euler theory. What is the Euler theory? So column and strut which fail by buckling may analyze by Euler theory, and some assumptions are there, you can see on the screen, like the column is initially straight, the cross section is uniform throughout, the line of thrust coincide exactly with an axial of column, the material is homogeneous, and like this only. So there are four cases are there in columns. So we will consider first case 1. If both ends are hinged, सपोज ये कॉलम है, इस पे पी लोड लग रहा है बहुत साइड से, तो कंप्रेसिव लोड होता है दबाना और टेंसल लोड होता है इसको खींचना. तो कंप्रेसिव लोड की वजह से इसके अंदर रिफ्लेक्शन आएगा. दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज देयर. अब रिफ्लेक्शन के बाद इसके अंदर हम मेंशन करते हैं कि टोटल डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, कितना होगा, एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ होगा. सो इन दिस केस लाइक पॉइंट ए एंड बी एंड द लेंथ इज L. So we will consider a point at distance x. So the general equation for this column is EI d square y upon dx square is equal to m. And what is the m for this case? If point x is there, then total deflection here is y, and in this case the maximum deflection will be at the center point. So we will consider at the point of x. So m is equal to load p into deflection y. बट यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, जो मोमेंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा. सो एंटी क्लॉकवाइज को हम कंसिडर करते हैं एज ए नेगेटिव. सो m इज इक्वल टू माइनस पी वाई. फॉर जनरल इक्वेशन, सो दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर द बोथ एंड फिक्स्ड केसेस. नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन? सो वी कैन राइट दिस इक्वेशन ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू minus py ei d square y upon dx square is equal to minus py upon ei, right? So consider if alpha square is equal to
P upon EI. So d square y upon dx square equal to minus alpha square y. This is the general equation for in this the both ends phase cases. Now what is the general solution for this case? So general solution for this case is y is equal to a sin alpha x plus b cos alpha x, right? Now अब हमें इस पर कंसिडर करना है बाउंड्री कंडीशंस. बाउंड्री कंडीशन इसमें लगती 3 टाइप से. पहला पॉइंट होगा ए, दूसरा पॉइंट बी एंड थर्ड पॉइंट इज द सेंटर पॉइंट सी. सो डिफ्लेक्शन एट द पॉइंट ए विल बी 0 if x is equal to, this is the x length, if x is equal to 0 that means this point, if x is equal to 0 then deflection is equal to 0 for this point. And for the point B, if x is equal to, this is the total length L, deflection is equal to 0. See this point. See both hinge case, like this is the column and what is the deflection between this point, this is the 0 and same is deflection point is 0 and maximum deflection will be the here is the center point and we are considering at the distance of x y, right? So if now अब इसको सोल्व करना है, x यदि x इक्वल टू 0 है और y, तो इक्वेशन में इसको पुट करेंगे. इक्वेशन नंबर 1, x इक्वल टू 0 दैट sin x इक्वल टू 0 दैट मीन्स 0, b cos alpha x इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू 0, b cos alpha 0 x इक्वल 0 इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू 0. फ्रॉम दिस इक्वेशन b इज इक्वल टू 0. नाउ the second boundary condition point B, at point B, if x is equal to L, if this total length L, then y is equal to again 0. तो in this case again इसकी वैल्यू पुट करो इस इक्वेशन के अंदर, y के अंदर a sin alpha L प्लस b ऑलरेडी 0 आ चुका है हमारा यहाँ पे, तो ये टर्म 0 हो जाएगी और y इज इक्वल टू 0. इसकी इस इक्वेशन से a साइन अल्फा l इक्वल टू 0 से इससे हमें a की वैल्यू पता लग जाएगा. तो साइन अल्फा l इज इक्वल टू 0, तो अल्फा l इज इक्वल टू पाई और अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई एल, राइट? तो इस जो बहुत जनरल हिंज केस है उसके अंदर हमें पता लगा कि अल्फा की वैल्यू आई है अपनी पाई अपॉन एल, बोथ केस सोल्व करने के बाद पॉइंट ए पे एंड पॉइंट बी पर. तो जो क्रिपलिंग लोड होता है पी, तो व्हाट विल बी द पी? क्रिपलिंग लोड या क्रिटिकल लोड या बकलिंग लोड, इसको सेम नाम से चेक किया जाता है. गेट के एग्जाम में जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्रिपलिंग लोड बोल देते हैं, कुछ जगह किसी जगह पे इसको क्रिटिकल लोड बोला जाता है, कहीं बकलिंग लोड की तरह भी इसको क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो वो कंसिडर अभी इसके कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं न्यूमेरिकल, तब इसका. तो बोथ केस हिंज, इसके अंदर जब हमें अल्फा की वैल्यू आ चुकी है पाई अपॉन एल, तो क्रिटिकल लोड हो जाएगा हमारा पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर. ये कैसे आया? जो हमारे पी की वैल्यू थी इसके अंदर डायरेक्ट पुट किया वैल्यू हमने अल्फा की. अल्फा हमने कंसिडर किया था, अल्फा की वैल्यू थी हमारी पी, अल्फा स्क्वायर था हमारा पी अपॉन ई आई. अल्फा की वैल्यू हमारी आई अभी पाई अपॉन एल, इसको पुट किया तो पी की वैल्यू हमारी आ गई पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर. ये हमारा सॉल्यूशन है. जनरली एग्जाम के अंदर किसी भी गेट के एग्जाम हो या कोई कंपटीशन एग्जाम हो, किसी के अंदर ही पूछा नहीं जाता कि डेरिवेशन क्या होता है. वहाँ पे सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना होता है कि बोथ केस हिंज होता है, तो फॉर्मूला क्या होगा, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर होता है ये, ठीक है.
ये तो हमारा पहला केस। अब हमारा सोल्व करना है सेकंड केस। सेकंड केस हम सेकंड केस लेते हैं, वन एंड फिक्स्ड हो और सेकंड एंड होता है जो फ्री हो, लाइक ए कैंटिलीवर कॉलम। ये इसको बोलते हैं वन एंड फ्री, वन एंड फिक्स। ये वाला जो एंड है इसका फिक्स है, ये जो एंड है ये है इसका, ये एंड इसका फ्री है, इसको बोलते हैं कैंटिलीवर कॉलम। अब इस पे अगेन वही लोड, हम पी लोड अप्लाई करते हैं ऊपर से, तो ऊपर से लोड अप्लाई करने की वजह से इस पर डिफ्लेक्शन होगा, और ये जो कॉलम का है इसका जो शेप है वो डिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा हो जाएगा, राइट। तो उस जो हमने सोल्व किया था बोथ एंड फिक्स, उसमें डिफ्लेक्शन की वजह से केस ऐसा हुआ था, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आया था यहाँ पर। यदि एक एंड फ्री हो जाता है तो इसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा टॉप पे, यदि x इज इक्वल टू एल। ठीक है, इस पे भी हम सेम x लेंथ पे कोई पॉइंट लेते हैं, इस पर डिफ्लेक्शन है y, टोटल है ये। इसको कोई भी टर्म में मान सकते हो, a बोल सकते हो आप, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन को अल्फा बोल सकते हो, या कोई भी टर्म रिप्रेजेंट कर सकता है इससे। अब इसके लिए भी जनरल इक्वेशन हमें सोल्व करना होगा। तो इसकी जनरल इक्वेशन होती है सेम, ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए माइनस वाई। पी ए माइनस वाई कैसा हुआ, या अल्फा, ये सपोज ए है तो इसका टोटल मोमेंट होगा यहाँ पे ए माइनस अल्फा, टोटल फोर्स इनटू लेंथ, तो फोर्स है पी, लेंथ है एल, ए माइनस वाई, तो ये हो जाएगा पी ए माइनस पी वाई। सो बोथ एंड, वन एंड फ्री हो और वन एंड फिक्स्ड हो, तो अपनी जनरल इक्वेशन बनती है ई आई डी स्क्वायर वाई डी एक्स इक्वल टू पी ए माइनस वाई, दैट मीन्स दिस इज द एम मोमेंट। अगेन वापस सोल्व करते हैं हम, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू पी ए अपॉन ई आई। जैसा पहले हमने कैलकुलेट किया था एल्फा स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या कंसिडर किया था, पी अपॉन ई आई, तो अगेन पी एल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू पी अपॉन ई आई। इसको हम सोल्व करते हैं, इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो इसका जनरल इक्वेशन निकालना पड़ेगा हमें अगेन। तो जनरल इक्वेशन y इज इक्वल टू ए साइन अल्फा एक्स प्लस बी कोस साइन अल्फा एक्स प्लस बी कोस अल्फा एक्स प्लस पी ए अपॉन ई आई अल्फा स्क्वायर फॉर जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस अबव इक्वेशन। इस इक्वेशन को, इस जनरल सॉल्यूशन को वापस सोल्व करते हैं आगे। पी ए अपॉन ई आई अल्फा स्क्वायर को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ए साइन अल्फा एक्स प्लस बी कोस अल्फा एक्स प्लस ए। अब ए कैसे आया, अल्फा की वैल्यू है हमारे पास अल्फा स्क्वायर इक्वल टू पी अपॉन ई आई, तो पी अपॉन ई आई इसकी जगह हम डाल सकते हैं अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर ए अपॉन अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर कैंसिल होकर ओनली ए बचा। दैट मीन द जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन इज ए साइन अल्फा एक्स प्लस बी कोस अल्फा एक्स प्लस ए। ये होता है जनरल सॉल्यूशन फॉर वन एंड फ्री एंड वन एंड फिक्स इक्वेशन के लिए। नाउ अगेन हम इस पर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं पॉइंट ए पर एंड पॉइंट बी पर। तो इस क्वेश्चन में पता लग रहा है कि हमें पॉइंट ए पर जो डिफ्लेक्शन होगा, लाइक इस पॉइंट से जो गैप है वो है 0, दैट मीन्स इफ़ एक्स, जो एक्स पॉइंट लिया था, यदि एक्स बराबर 0 है तो हमारा डिफ्लेक्शन वाई इक्वल टू 0 होगा, एंड इफ एक्स इक्वल टू एल है तो डिफ्लेक्शन जो होगा वो मैक्सिमम होगा ए, तो वाई इक्वल टू ए।
बाउंड्री कंडीशंस में। तो इसको पुट करते हैं अगेन और इसके इक्वेशन को जनरल सॉल्यूशन में। अब पहले जो केस है हमारा, इफ़ x इक्वल टू जीरो देन y इक्वल टू जीरो, इसको पुट करेंगे इसके अंदर और इसकी वैल्यू निकालेंगे a एंड b के सोल्व, एंड देन अगेन हम इसको पुट करेंगे x इक्वल टू एल एंड y इक्वल टू a, हम जनरल इक्वेशन जनरल आंसर के अंदर, तो उसकी हमें a एंड b की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। तो बाउंड्री कंडीशन लगाई हमने, सपोज x इक्वल टू जीरो, x पॉइंट पे निकाल रहे हैं हम, x जीरो है दैट मीन्स पॉइंट a, तो डिफ्लेक्शन जीरो होगा। तो जनरल सॉल्यूशन जो इक्वेशन का था, a साइन अल्फा x प्लस b कॉस अल्फा x प्लस a, इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं हम x इक्वल टू जीरो देन y इक्वल टू जीरो। तो इफ़ x इक्वल टू जीरो तो y इक्वल टू जीरो दे रखा है, तो इस इक्वेशन के थ्रू हमें पता लगेगा b की वैल्यू निकलेगी 0 इज इक्वल टू 0 प्लस b प्लस a, दैट मीन्स b इज इक्वल टू माइनस a। जब बाउंड्री कंडीशन हमने लगाई पॉइंट जीरो पॉइंट पर x इक्वल टू जीरो था, तो हमें पता लगा कि इसके अंदर डिफ्लेक्शन जीरो है और इसके अंदर हमारे b की वैल्यू निकलती, कैपिटल V जो है उसका वैल्यू आते हैं माइनस a। अब बात करते हैं स्लोप की। यदि x बराबर जीरो है, y बराबर जीरो है, तो dy बाई dx क्या होगा? तो dy बाई dx के लिए हम इस इक्वेशन को डिफरेंशियल करते हैं, इक्वेशन को सोल्व करते हैं। dy बाई dx इज इक्वल टू a अल्फा कॉस अल्फा x माइनस b अल्फा साइन अल्फा x, राइट। तो इसके अंदर अगेन वैल्यू पुट करते हैं हम x इक्वल टू जीरो एंड y इक्वल टू जीरो की, तो वैल्यू इसके अंदर हम आती वैल्यू a की वैल्यू आ जाती फिर हमारी जीरो। अब बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं हम, b इफ x इक्वल टू l हो तो डिफ्लेक्शन कितना होगा? इफ x इक्वल टू l देन y इक्वल टू a, यह है बाउंड्री कंडीशन सेकंड। इसके थ्रू सोल्व करते हैं हम इक्वेशन, जनरल इक्वेशन वापस सोल्व करते हैं, तो हमारी आती है वैल्यू cos अल्फा l इक्वल टू जीरो, तो अल्फा l की वैल्यू हो जाएगी हमारी पाई बाई टू, अल्फा l इक्वल टू पाई बाई टू, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई टू एल, राइट। अल्फा अब इसको हम जनरल इक्वेशन जो हमने अल्फा की वैल्यू कंसिडर किया था उसके अंदर वापस क्रिटिकल लोड के लिए फॉर्मूला बनाते हैं, जो हमने इफ़ बोथ एंड हिंज थे, जब दोनों केस हिंज थे तब हमारा क्रिटिकल लोड का फॉर्मूला आया था P इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। तो इस केस के लिए जब वन एंड फ्री है, वन एंड फिक्स्ड है, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा अल्फ़ा की वैल्यू था हमारा पाई अपॉन टू एल, तो अल्फ़ा इस पी का फॉर्मूला था अल्फ़ा स्क्वायर ई आई, तो अल्फ़ा की वैल्यू इसमें पुट करते हैं हम पाई स्क्वायर अपॉन टू एल स्क्वायर ई आई। तो फाइनली क्रिटिकल लोड for one end fixed and one end free is equal to P is equal to pi square EI upon 4L square। तो हमारा फाइनली क्रिटिकल लोड बकलिंग लोड जो है इसका फॉर्मूला आता है P इज इक्वल टू पाई स्क्वायर EI अपॉन 4L स्क्वायर फॉर द वन एंड फ्री और वन एंड फिक्स्ड केस के लिए। ये था हमारा सेकंड केस। अब हम बात करते हैं थर्ड केस की। ये डेरिवेशन के अलावा मेन चीज़ होता है, तो वैसे फॉर्मूला ये याद रखना है कि क्रिटिकल लोड या बकलिंग लोड का सोल्व करने का फॉर्मूला क्या है। इसी से ही बेस पे आपके 90% क्वेश्चन सोल्व होते हैं, किसी भी एग्जाम हो। अब बात करते हैं हम, यदि बोथ एंड फिक्स हो तो
जब बोथ एंड फिक्स होता है इस कंडीशन के अंदर हम जब सोल्व करते हैं इसको, तो सेम चीज़ है कि दोनों साइड से हमारा जो कॉलम है वो फिक्स है और दोनों साइड से पी लोड अप्लाई होगा फिर इसके अंदर, तो जो डिफ्लेक्शन होगा इस टाइप से आएगा। तो ये जो केस है इसके अंदर भी बहुत हिंज की तरह ही सेंटर में ही मैक्सिमम लोड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा। एंड सेम पॉइंट इस पे और इस पे हमारा बाउंड्री कंडीशन के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं सेम इक्वेशन लगा के, तो जो बोथ एंड फिक्स है इसका केस का हमें पूरा जनरल सॉल्यूशन आएगा। तो इस बोथ एंड फिक्स के लिए हम जनरल इक्वेशन लिखते हैं ई आई डी स्क्वायर वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस पी वाई प्लस एम। माइनस पी वाई प्लस एम को लिखा क्योंकि ऊपर वाला जो मोमेंट लगेगा ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये वाला क्लॉकवाइज लगेगा, तो ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, माइनस पी वाई। अब इस इक्वेशन को वापस हम सोल्व करने जाते हैं, जो इसका डायरेक्ट में जनरल सॉल्यूशन लिख देता हूँ। y इक्वल टू ए साइन एल्फा एक्स प्लस बी कोस एल्फा एक्स प्लस एम अपॉन ई आई एल्फा स्क्वायर, ये इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। इस जनरल सॉल्यूशन को वापस कैलकुलेट करते हैं हम, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट अल्फा की टर्म के अंदर इसको सोल्व कर लेते हैं, तो इसका फाइनल आएगा ए साइन एल्फा एक्स प्लस बी कोस एल्फा एक्स प्लस एम अपॉन पी। अब इस केस के अंदर हम अप्लाई करते हैं वापस बाउंड्री कंडीशन। इफ x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू इसके अंदर आएगी हमारी, इसका जनरल सॉल्यूशन था। जनरल सॉल्यूशन के अंदर हम इसकी बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, x की वैल्यू 0 करते हैं, ये टर्म 0 हो जाएगा। ये सोल्व करते हैं तो इसके b की वैल्यू आएगी माइनस एम अप पी। b इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन पी, राइट। अब अगेन इस पॉइंट पर हम डिफ्लेक्शन निकालते हैं, तो इसका वापस डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करते हैं इसको, तो x इक्वल टू 0 देन डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को हम सोल्व कर लेते हैं। जब इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो a अल्फ़ा कोस अल्फ़ा एक्स माइनस बी अल्फ़ा साइन अल्फ़ा एक्स आता है इज इक्वल टू 0। इससे हम a की वैल्यू निकाल देते हैं जो 0 आ जाएगी। अब इसके अंदर y की वैल्यू के अंदर हम अगला स्टेप करते हैं, x बराबर यदि x इक्वल टू एल है तो अगेन y की वैल्यू 0 होगा। इस पॉइंट पर ये दोनों के बीच में गैप 0 था, सेम पॉइंट ये होगा यदि x ये x पॉइंट था, यहाँ पे डिफ्लेक्शन y था, इस पॉइंट पर 0 है, इस पॉइंट पर भी 0 होगा, यहाँ पे y है, ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो हम सोल्व करते हैं इफ़ x की वैल्यू l है, पहले x की वैल्यू 0 पे क्या था, दैट मीन्स दिस पॉइंट पर क्या था, अब x की वैल्यू l पे कर रहे हैं, दैट मीन्स b पॉइंट पर कर रहे हैं। तो इस पर हम सोल्व करते हैं x, यदि x बराबर l है तो y बराबर 0 हो गया, देन y बराबर 0 इज इक्वल टू एम अपॉन पी 1 माइनस कोस एल्फा एल। एक्स की वैल्यू हमने एल पुट कर दिया है, तो कोस एल्फा एल को सोल्व करते हैं हम, ये 0 हो जाएगा टर्म पूरा, तो 1 माइनस कोस एल्फा एल इज इक्वल टू 0, कोस एल्फा एल इज इक्वल टू 1, राइट। तो इसमें एल्फा एल की वैल्यू कोस एल करते हैं तो ये होता था 2 पाई, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 पाई अपॉन एल। ये इक्वेशन नंबर हमारा 4। अब इसी इक्वेशन को हम वापस से हम जो हमारा क्रिटिकल लोड फॉर्मूला है वो निकालेंगे जब बोथ एंड फिक्स्ड होते हैं। अब क्रिटिकल फॉर्मूला जो हमारा निकलेगा P इक्वल टू होता है आपका अल्फ़ा स्क्वायर ई आई अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर ई आई होता है। अब अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास बोथ एंड फिक्स्ड आते हैं तब निकलता है 2 पाई अपॉन एल, तो P इज इक्वल टू 2 पाई
अपॉन एल स्क्वायर ई आई। सोल्व करते हैं इसको, पी 4 पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर ई आई, राइट। ये होता है हमारा क्रिटिकल लोड का फॉर्मूला फॉर इस केस के लिए कि जब दोनों एंड होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं। अब हम जाते हैं चौथे केस पर। चौथा केस होता है कि जब वन फिक्स्ड हो और वन हिंज हो, तो कैसे क्रिटिकल लोड निकाला जाएगा, कैसे क्रिटिकल लोड होगा, बकलिंग कैसे होगा या डिफ्लेक्शन कैसे होगा इसका। ये केस आता है हमारा जब वन एंड फिक्स्ड हो और वन एंड हिंज्ड हो। इसके लिए जो जैसे डायग्राम है, ये हमारा कॉलम है, ये फिक्स पार्ट है हमारा, ये हिंज पार्ट है। तो जो डिफ्लेक्शन होगा वो ऐसा होगा। इस केस के अंदर देखिए ये सेम एल लेंथ का हमने इसमें कॉलम लिया है, तो ये पॉइंट ए एंड बी है, इस पे ये लग रहा है पी। अब इसके अंदर हम मैक्सिमम लोड कहाँ होगा इसको निकालने के लिए इसका स्लोप जो भी इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन को सोल्व करना होगा। जनरल आंसर जो सॉल्यूशन आएगा उसके थ्रू इसके अंदर बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। बाउंड्री कंडीशन जो होती है यहाँ पे हिंज वाले केस की लगेगी, यहाँ पे लगेगी हमारी फिक्स्ड वाले केस की। तो इसकी जनरल इक्वेशन हम लिखते पहले, ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी वाई। ऊपर वाले केस के लिए जब एंटी क्लॉकवाइज हमारा मोमेंट लग रहा है तो माइनस पी वाई हो जाएगा, प्लस आर एल माइनस एक्स। ये जो पॉइंट है हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं किसी एक्स पॉइंट पर, किसी पॉइंट सी पर लिख रहे हैं जिसकी लेंथ पॉइंट डिस्टेंस है एक्स, और यहाँ पर डिफ्लेक्शन आ जाएगा हमारा आर। तो इस पॉइंट पे हम सोल्व कर रहे हैं सी पॉइंट पर, दैट मीन्स टोटल लेंथ एल। इस पॉइंट पर एक्स इक्वल टू 0, इस पॉइंट पर एक्स इक्वल टू एल, और इस पॉइंट पर है एक्स इक्वल टू, ये एक्स पॉइंट है, लेंथ एक्स। इस जनरल इक्वेशन को सोल्व करते हैं हम अगेन, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एल्फा स्क्वायर वाई, राइट। दैट मीन्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू आर एल माइनस एक्स अपॉन ई आई। आर एल माइनस एक्स अपॉन ई आई, ये है हमारी जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन व्हेन जब वन एंड फिक्स्ड हो एंड वन एंड हिंज्ड हो। इसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे इक्वेशन के लिए हम, y इज इक्वल टू ए साइन एल्फा एक्स प्लस बी कोस एल्फा एक्स प्लस आर एल माइनस एक्स ई आई ए स्क्वायर, राइट। इस इक्वेशन के लिए जनरल सॉल्यूशन होगा y इज इक्वल टू ए साइन एल्फा एक्स प्लस बी कोस एल्फा एक्स प्लस आर एल माइनस एक्स ई आई एल्फा स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं। बाउंड्री कंडीशन अगेन वही लगानी होगी हमें वापस से, पॉइंट ए पर एंड पॉइंट बी पर। पॉइंट ए पर x इज इक्वल टू 0 है, इफ x इज इक्वल टू 0 देन डिफ्लेक्ट एल y इज इक्वल टू होगा हमारा पास 0। अब इस जब इक्वेशन सोल्व किया इसके अंदर जनरल सॉल्यूशन के अंदर जब इसको सोल्व करते हैं देन बी की वैल्यू आ जाएगी हमें माइनस आर एल अपॉन पी, ठीक है। अब सेम चीज़ स्लोप निकालते हैं इसके अंदर, वही जो जनरल सॉल्यूशन इक्वेशन है y इक्वल टू 0 देन डी वाई डी एक्स निकालते हैं 0। इसको सोल्व करते हैं तो हम फिर a की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो a की वैल्यू इसके अंदर आएगी, इसको कैलकुलेट करने पे a की वैल्यू आर अपॉन पी एल्फा,
ठीक है। अब सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं इसके अंदर, जब x की वैल्यू है हमारे पास l और उस टाइम डिफ्लेक्शन भी सेम होगा, 0 होगा हमारे पास। x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 0। इस केस में अगेन हम a की वैल्यू पुट करके इसके अंदर वैल्यू निकालते हैं। तो y इक्वल टू 0 और 0 इज इक्वल टू होता है r अपॉन अल्फ़ा p साइन अल्फ़ा l माइनस आर एल अपॉन p कोस अल्फ़ा l। ठीक है। तो बाउंड्री कंडीशन x इक्वल टू 0 दर y x इक्वल टू l पर y इक्वल टू 0 होता है, दैट मीन्स इस पॉइंट पर y की वैल्यू डिफ्लेक्शन 0 होगा। ये l लेंथ है टोटल। तो जनरल सॉल्यूशन के अंदर पुट करते हैं x l और y 0, तो आता हमारा वैल्यू आती है r अपॉन p अल्फ़ा साइन अल्फ़ा l माइनस आर एल अपॉन p कोस अल्फ़ा l। इसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। r अपॉन अल्फ़ा p साइन अल्फ़ा l इज इक्वल टू आर एल अपॉन p कोस अल्फ़ा l। तो r अपॉन अल्फ़ा p इंटू p अपॉन आर एल इज इक्वल टू साइन अपॉन कोस टेन थीटा, टेन अल्फ़ा एल इज इक्वल टू आर एल पी आर अल्फ़ा पी। आर से आर कैंसिल हो जाता है, पी से पी कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास वैल्यू आती है 10 अल्फ़ा एल। 10 अल्फ़ा एल की वैल्यू निकलती है हमारे पास अल्फ़ा एल ओनली। दैट मीन्स टेन अल्फ़ा एल इज इक्वल टू अल्फ़ा एल। तो 10 अल्फ़ा एल की वैल्यू हमारे पास अल्फ़ा एल आ गई, तो 10 अल्फ़ा की वैल्यू अल्फ़ा एल होगा हमारे पास 4.49 रेडियन। इसको कैलकुलेट कर लोगे तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी 4.49 अपॉन एल रेडियन। इसको अगेन हम क्रिटिकल लोड फार्मूला पी अल्फ़ा स्क्वायर ई आई के अंदर पुट कर देंगे। अल्फ़ा की वैल्यू आएगी हमारे पास 4.49 अपॉन एल स्क्वायर ई आई। तो इसको सोल्व करते हैं। 4.49 को सोल्व करो, 4.49 स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर ई आई। दैट मीन्स जो वन एंड जब फ्री होता है, वन एंड फिक्स्ड होता है, वन एंड हिंज होता है, तो हमारा क्रिटिकल लोड का फॉर्मूला आता है 4.49 स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर ई आई। ये थे 4 केसेस। इन चारों केसेस से रिलेटेड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गेट के अंदर अराउंड 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन इसमें से आते हैं एग्जाम में डायरेक्ट। तो इसकी कुछ एक्सरसाइज हम करते हैं पहले। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। एक ये डायग्राम है हमारे पास। नीचे सरफेस है, इस पे ये एक कॉलम है, ये स्ट्रेट है, इस पे इधर से एंगल लग रहा है, दोनों साइड से फिक्स सरफेस है। यहाँ पे P आपका पॉइंट है, पी क्यू आपका ये एंगल दे रखा है आपका क्वेश्चन में 45 डिग्री, और ये फोर्स लग रहा है। क्वेश्चन दे रहा है द रोड पी क्यू ऑफ लेंथ L, इसकी लेंथ L दे रखा है, विद फ्लेक्चरल रिजिडिटी EI इज हिंज्ड एट बोथ एंड। क्वेश्चन में दे रखा है कि बोथ एंड
हिंज है। फॉर व्हाट मैक्सिमम फोर्स एफ इज इट एक्सपेक्टेड टू बकल, कि किस मैक्सिमम फोर्स पे ये बकलिंग करना स्टार्ट कर देगा। अब ये क्वेश्चन जो है गेट 2008 में भी आया हुआ है। इस क्वेश्चन को सोल्व करना, तुम्हें क्रिटिकल लोड का फॉर्मूला ऑलरेडी दे रखा है। सबसे पहले निकालना है हमारे पास, जब डायगोनल दे रखा है कि ये इस एंगल पे है तो इसके हमें कंपोनेंट बनाने होंगे, दैट्स इट। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल एफ पी क्यू ये निकालना हमें, एफ पी क्यू क्या है। तो एफ पी क्यू होगा, टोटल फोर्स दे रखा है एफ साइन 45 डिग्री, ठीक है। अब बोथ एंड, यदि बोथ एंड हिंज होते हैं तो केस में फॉर्मूला लगाया था हमने, फर्स्ट केस पढ़ा था बोथ एंड हिंज, उसके अंदर फॉर्मूला क्रिटिकल लोड या बकलिंग लोड जो बताया था मैंने, उसका फॉर्मूला था पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। इसके अंदर हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, एफ की वैल्यू। तो इसके अंदर फोर्स पी की वैल्यू देखिए एफ साइन 45, एफ साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। 45 डिग्री साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 एफ अपॉन √2 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर, दैट्स इट। ये फॉर्मूला था, एफ की वैल्यू निकालनी थी हमें, टोटल इसके अंदर टोटल फोर्स निकालना था, जो बकल होता है वो हो जाएगा हमारा √2 पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। ये आंसर था। अब गेट 2008 में जब ऐसा क्वेश्चन आता है जो मैक्सिमम 3 स्टेप का है, तो आई डोंट थिंक सो कि ये बड़ी कोई टफ है या कुछ ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन है। तो अब चलो इसे हम सेकंड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन मैं बोलता हूँ, द रेशो ऑफ आइलर बकलिंग लोड ऑफ कॉलम विद द सेम पैरामीटर्स हैविंग बोथ एंड फिक्स्ड एंड बोथ एंड हिंज्ड। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कॉलम है, सबसे पहले लैंग्वेज समझो क्वेश्चन की, कि एक कॉलम है जिसके अंदर सेम पैरामीटर है, लेंथ है या उसकी रिजिडिटी है, आइलर बकलिंग, जो क्वेश्चन डाटा दे रखा है वो हमारा सेम है, चाहे बोथ हैंड फिक्स के लिए एंड बोथ हैंड हिंज के लिए। तो उसके अंदर हमें निकालना है कि रेशो निकालना है बेसिकली। तो रेशो का, अब ये क्वेश्चन आया था हमारे गेट 2002 1998, 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। आईईएस के अंदर ये 2001 में पूछा गया क्वेश्चन पूछा था कि सेम पैरामीटर है, यदि सेम पैरामीटर है तो हमने भी कैलकुलेट किया था बोथ एंड फिक्स्ड, बोथ एंड हिंज एंड बोथ एंड फिक्स्ड। इन्होंने पूछा है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि दोनों के बीच में रेशो क्या होगा बकलिंग लोड का। बकलिंग लोड का फॉर्मूला हमें पता था, बोथ एंड हिंज के लिए फॉर्मूला था पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर, एंड बोथ एंड फिक्स थे तब फॉर्मूला था हमारे पास 4 पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। सिंपल था। अब पूछा था रेशो क्या है, अब दोनों के रेशो क्या है, दोनों का रेशो ये रेशो है। पैरामीटर सेम दे रखा है कि लेंथ एल दे रखी है, ई की वैल्यू सेम है, आई की इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम दे रखा है, और पाई तो कॉमन कांस्टेंट है, तो इसके अंदर रेशो क्या होगा, ये सारे कैंसिल हो जाएगी, 1:4, दैट्स इट। ये क्वेश्चन था गेट के अंदर, 2 बार गेट में आ चुका है क्वेश्चन, एंड इवन आईईएस के एग्जाम में भी एक बार पूछा जा चुका है। सिर्फ 1 स्टेप का यदि आपको फॉर्मूला याद था कि बोथ एंड हिंज देन फॉर्मूला इज पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर है, एंड यदि बोथ फिक्स्ड है तो हमारा फॉर्मूला क्रिटिकल लोड के लिए होता है 4 पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। दोनों का रेशो निकाल दिया, 1:4, इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। एक क्वेश्चन देखा, पिस्टन रोड ऑफ डायमीटर 20 mm। एक पिस्टन रोड है, इसका डायमीटर दे रखा है, डायमीटर है 20 mm एंड लेंथ इज 700 mm। एल दे रखा है 700 mm। इन ए हाइड्रोलिक सिलेंडर इज सब्जेक्टेड टू ए कंप्रेसिव फोर्स ऑफ 10 kN।
ड्यू टू द इंटरनल प्रेशर द एंड कंडीशन फॉर द रोड में बी अज्यूम एज गाइडेड एट द पिस्टन एंड हिंज्ड एट द अदर एंड। इसकी हमारी कंडीशन दे रखी है 1 हिंज्ड एंड 1 पिस्टन। द यंग मॉडुलस दे रखा है हमें 200 GPa। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर द पिस्टन रोड, हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है इसके अंदर। ये हमने सॉम के अंदर भी पढ़ा होगा। तो इसके अंदर बेसिकली कंसेप्ट लग रहा है हमारे, वही कॉलम का 1 एंग दे रखा है, कंडीशन दे रखी है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा? तो सबसे पहले हमें निकालते हैं कि एज्यूम दे रखा है कि गार्ड जो हमारी हिंज वन साइड हिंज है, वन साइड पिस्टन है, तो कंडीशन कौन सी लगने वाली है इसके अंदर? तो जो इसका क्रिपलिंग लोड होगा फॉर्मूला, वो कौन से कंडीशन लगे? बोथ एंड, इसके अंदर यदि बोथ एंड हिंज होता तो डायरेक्ट हमारा पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर होता। ये है इसका मतलब कि 1 एंड हिंज है, दूसरा फिक्स्ड है। तो इसका फॉर्मूला हमारा था 2 पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर। अब इस कंडीशन के अंदर हमें दे रखा है कि इसके अंदर फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है। आई की वैल्यू दे रखी है हमें, आई निकालना पड़ेगा। आई की वैल्यू, आई कैसे निकालेंगे? आई की वैल्यू होगी हमारे पास, ये ऑब्वियस सिलेंड्रिकल है, पाई अपॉन 64 रेडियस का पावर, डायमीटर की पावर 4। ठीक है, ये इससे हमें आई की वैल्यू निकल जाएगा। अभी डायमीटर दे रखा है हमारा 20 mm पावर 4 अपॉन 64, तो आई की वैल्यू आ जाएगी हमारी। अब आई की वैल्यू को हमें इसमें पुट कर देना, हमें एल दे रखा है, पाई पता है, ई दे रखा है 200 GPa, आई दे रखा है, तो पी क्रिटिकल आ जाएगा हमारा 2 पाई स्क्वायर इंटू 200 GPa इंटू पाई अपॉन 64 इंटू 220 की पावर 4 अपॉन एल है 700 mm, 700 स्क्वायर। ये दे रखा है, ये ध्यान रखना इसके अंदर ये mm के अंदर दे रखा है, ये GP दे रखा है, इसको कन्वर्ट कर देंगे तो 10³ किलो पास्कल कर देंगे इसको। ठीक है, PCR की इसको कैलकुलेट करोगे आप, इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आती है हमारे पास 63 आई थिंक, हाँ 63.27, ये हमने कन्वर्ट कर दिया किलो पास्कल। दैट मीन्स इसका क्रिटिकल लोड था, जो रोड दे रखी थी हमें, जो वन साइड हिंज थी, वन साइड फिक्स थी, उसका क्रिटिकल लोड जो निकला हमारे 63.27 किलो न्यूटन आया, किलो न्यूटन। अब निकालना है हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए होता है कि क्रिटिकल इसका बकलिंग लोड कितना है 63, बकलिंग लोड अपॉन टोटल फोर्स जो अप्लाई हो रहा है 63.27 डिवाइड बाय फोर्स अप्लाई जो हो रहा है 10, दैट मीन्स फैक्टर ऑफ सेफ्टी विल बी 6.327। ये क्वेश्चन गेट 2007 में पूछा गया है। चार स्टेप का क्वेश्चन था, सिर्फ ये स्टेप आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं डायरेक्ट, और इस आई को सोल्व करने के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपको मालूम पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू सब कैलकुलेट होकर कैंसिल हो जाएगी सारा, तो इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपको ये एक स्टेप कम हो जाएगी, 63.27 आएगा, डायरेक्ट 10 से डिवाइड करना है, फैक्टर सेफ्टी आंसर आ जाएगा। मेन फॉर्मूला लगा था सेम वही क्रिटिकल लोड का, कि आपको सिर्फ ये देखना था इसमें कौन सा क्रिटिकल लोड, कौन सा केस हमारा लग रहा है। केस 1 था, 2 था, केस 1 हमारा बोथ फ्री हिंज था, देन बोथ फिक्स था, देन थर्ड था हमारा 1 फ्री, सेकंड था हमारा 1 फ्री 1 फिक्स्ड, एंड थर्ड ये था केस हमारा 4, जब 1 फ्री है 1 अपना हिंज्ड है। एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं हम इसके लिए। ये क्वेश्चन है हमारा एक नया, आयलर क्रिटिकल लोड फॉर ए कॉलम विद बोथ एंड हिंज। सबसे पहले हमें बोथ एंड हिंज ये दे रखा है, केस दे रखा है, बोथ एंड हिंज दे रखा है। फॉर्म इस पर दे रखा है कि उन्होंने कि जो बकलिंग लोड क्रिटिकल लोड है वो 40 किलो न्यूटन का दे रखा है। $40 किलो न्यूटन दे रखा है। व्हाट वुड बी द चेंज इन द क्रिटिकल लोड इफ बोथ एंड आर फिक्स्ड। हाँ, सब
एक क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि बोथ एंड हिंज है तो क्रिटिकल लोड हमारा 40 किलो न्यूटन है। दैट मीन्स बोथ एंड हिंज है, इसका मतलब है कि पी सी आर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर, यह है हमारा 40 किलो न्यूटन। अब ये बोल रहा है कि यदि सेम कंडीशन होती और 40 ही हमारा व्हाट वुड बी द चेंज इन क्रिटिकल लोड इफ बोथ एंड आर, हाँ यदि इस केस के अंदर हम बोथ, ये था हमारा केस हिंज, यदि बोथ फिक्स कर देते हैं तो बोथ फिक्स करने के बाद हमारे पास क्रिटिकल लोड में क्या चेंजेस आएगा, तो केस आता है हमारा बोथ फिक्स्ड। अब पहला केस था हमारा पी क्रिटिकल, जब था हमारा बोथ हिंज था तब हमारा क्रिटिकल लोड की वैल्यू दे रखी थी 40 किलो न्यूटन। दैट मीन्स ये वैल्यू दे रखी डायरेक्टली हमारे पाई स्क्वायर ये अपॉन एल स्क्वायर, इससे हम पता लग, अब दे रखा अगला केस था हमारा बोथ एंड फिक्स्ड है, उसका फॉर्मूला हमें पता था 4 पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर, राइट। तो इसके अंदर कैलकुलेशन करने की या उसको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसको आप सोल्व करोगे वही, पहले मुझे ई निकालना पड़ेगा क्वेश्चन के लिए, आई निकालना पड़ेगा, आई के लिए वैल्यू डायमीटर दे नहीं रखा, टाइम वेस्ट होगा सोचने में। सिंपल क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो कि जब ये वैल्यू है, ये वैल्यू दे रखा है पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है उन्होंने 40 किलो न्यूटन, तो उन्होंने पूछा है कि जब बोथ फिक्स कर दे, इस केस के अंदर दोनों को हिंज को हटा के फिक्स कर दूँ तो क्रिटिकल लोड क्या होगा, वो क्रिटिकल, ये जो फॉर्मूला है ये है ये, दैट मीन्स ये जो लोड है वो 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 इंटू ये वैल्यू 4 पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर, पाई स्क्वायर ई आई एल, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर की वैल्यू हमें ऑलरेडी 40 किलो न्यूटन दे रखा है, दैट मीन्स की जगह हम पुट करते हैं 40 किलो न्यूटन, 4 इंटू 40 160 किलो न्यूटन, सिंपल। ये था क्वेश्चन, सिर्फ इसका आंसर 160 किलो न्यूटन हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया था आई थिंक IES 96 के अंदर। तो कॉलम स्ट्रेट से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होते हैं वो इतना टफ नहीं है कि आप कर नहीं पाओ, बेसिक कंसेप्ट आपको पता है तो उसका आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये तो कुछ क्वेश्चंस थे जो एग्जाम्पल कराए थे, जो इवन गेट में पूछे गए हैं या IES की प्रीलिम्स में पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन उसी लेवल के थे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते यदि आपको पूरे अब कॉलम्स के अंदर सेकंड पार्ट जो बचता है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में अपने रिकॉर्ड करूँगा। यदि आपको इनके अंदर इस कॉलम्स के वाले पार्ट के अंदर किसी केसेस के अंदर क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं है, तो मुझे मैसेज कर देना, ड्रॉप कर देना, मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, हिंट दूंगा। इवन इनके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी होती है डायरेक्ट, जैसे लाइक इसको सोल्व करते आप फिर वैल्यू निकालते फिर इसे पुट करते, इतना टाइम वेस्ट करने, मैक्सिमम गेट के एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम 30 सेकंड या 40 सेकंड या 1 मिनट होता है। अब 1 मिनट में आप एक्सप्लेन करोगे कि डायरेक्ट, या जो क्वेश्चन 10 सेकंड का उसके अंदर 1 मिनट लगने का लॉजिक ही नहीं है। तो ये तो कॉलम्स का पहला चैप्टर था, फर्स्ट पार्ट 1 था। इसके अंदर आज हमने पढ़ा कि कॉलम्स के अंदर कैसे क्या क्या है, कैसे सोल्व करते हैं, कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके बारे में आगे कि और इसके अंदर कैसे कैसे और नए नए केस आ सकते हैं, एग्जाम्स आ सकते हैं, एग्जाम्पल्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।